Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership tendency, a coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment, and success. A comprehensive current for dedicated student. Listening is very powerful. Today's sources: Hindu newspaper, Indian Express, Navbharat Times. The beautiful quote, the quote of Mahatma Gandhi. This quote I have taken from the Words of Gandhi written by Richard Attenborough. The quote is, I have learned through bitter experience the one supreme lesson to to conserve my anger, and as heat conserved is transmuted into energy, even so our anger control can be transmuted into a power which can move the world. Before starting the program, I would like to request you, please don't forget to share, subscribe and like. इस वीडियो को सबको शेयर करें, इस वीडियो को फैलाने में मेरी मदद करें। बस मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 मिनट दें। आपसे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। आपके छोटे से प्रयास से लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। न्यूज़ जानना हर व्यक्ति की आवश्यकता है। सो द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज आर MOD approves 33 new fighter jets in deal worth 38,900 crore. Amid the tension on the border with China, the Defense Acquisition Council, chaired by Defense Minister Rajnath Singh on Thursday, approved deals worth 38,900 crore. These include procurement of 21 MiG-29 fighter jets for the Indian Air Force, upgrade of 59 MiG-29s, and the acquirement of 12 Su-30 MKI aircraft. The approvals come a week after Mr. Singh's visit to Moscow for the Victory Day parade. Also, on Thursday, Prime Minister Narendra Modi called up Russian President Vladimir Putin to congratulate him on a winning vote on changes to the constitution. The other deals include pink ammunition, armored vehicle BMP, armament upgrades and software-defined radio for the army, long-range land attack missile system of 1,000 km and the Astra behind visual range air-to-air missile for the Navy and the IAF, all of which will procure domestically and worth an estimated 31,130 crore. With referendum win, Vladimir Putin tightens grip on power. I'm congratulating Mr. Putin to do a great job for Russia. With Russian overwhelmingly backing a set of constitutional amendment in a referendum, Vladimir Putin on potentially stay in the power for the 2 more 6-year terms after this term expired in 2024. After a week-long vote came to an end on the Wednesday, preliminary results released by the Election Commission showed that almost 78% of the voters endorsed the amendments, while 21% voted against them. Some 65 voters had turned up to cast their ballot. Madhya Pradesh gets 28 new ministers. They include 20 cabinet, 8 ministers of state. India camp wins big with 9 berths. Madhya Pradesh Governor Anandiben Patel on Thursday administered the oath of the office to 28 ministers, including 9 supporters of Jyotirmay Scindia, who switched over to the BJP from the Congress to join the Council of Ministers of Shivraj Singh Chauhan government. In an uncertain world, a seat at the global high table. In an uncertain world, a seat at the global high table. India will be back in the United Nations Security Council for the 2-year term, beginning January 1st, 2021, at a critical time in the history of the UN. It is hoped that by then, COVID-19 will be subsided, a US president will have to be elected, and the contours of a new world order may have been emerged. India is serving for the 8th time and has a record of contributing to some of the seminal resolution of the UNSC. As a consequence of the long debate on the expansion of the UNSC, many countries which have never served on the Council have begun to claim their turn. Earlier, India, Japan, Pakistan, and some others used to get elected more frequently compared to the retiring members. The newly elected members are more politically significant. India's reputation for taking balanced position and consensus building will be welcomed by the other countries.
जापान की सुप्रीम बुलेट ट्रेन। जापान की सुप्रीम बुलेट ट्रेन भूकंप के दौरान भी दौड़ती रहेगी, सामान भूले तो लाइट जलेगी। जापान में अब ऐसी बुलेट ट्रेन चलेगी जो न केवल तेज दौड़ेगी बल्कि भूकंप के दौरान भी यात्रियों को सुरक्षा का ध्यान रखेगी। इस ट्रेन का नाम है N700S। इसके नाम से एस का मतलब है सुप्रीम। यह ट्रेन टोक्यो से ओसाका शहर के बीच चलेगी। यह दुनिया की सबसे तेज स्पीड वाली ट्रेनों में से एक है। यह 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ सकती है। सेंट्रल जापान रेलवे ने 13 साल बाद तोकादो शिकनसेन लाइन पर नया बुलेट ट्रेन मॉडल पटरी पर उतारा है। इस ट्रेन को ओलंपिक खेलों के दौरान चलाया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते गेम्स नहीं हो पाए। बुलेट ट्रेन का यह मॉडल पहली की बुलेट ट्रेन से ज़्यादा अलग नहीं दिखाई देता, बल्कि यह ट्रेन यात्रियों के लिए ज़्यादा आरामदायक है। एक नए एक्टिव सस्पेंस सिस्टम की वजह से दौड़ते समय यह ट्रेन ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती। ट्रेन में अपग्रेडेड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। इसके ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इमरजेंसी के समय ट्रेन को तेज़ी से रोकने का काम करते हैं। इस साल 31 लाख पौधे। पर्यावरण के लिए दिल्ली सरकार का खास अभियान। दिल्ली सरकार ने इस साल शहर के 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अगले 5 साल में दिल्ली के 2 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प अपने गारंटी कार्ड के जरिए दिल्ली के लोगों को दिया था। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इस साल 10 जुलाई से पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू होने जा रहा है। 10 से 26 जुलाई तक 15 दिनों का पर्यावरण वृक्षारोपण पखवाड़ा मनाया जाएगा। गोपाल राय 10 जुलाई को पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, 15 को परिवहन मंत्री गहलोत, 17 को समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, 20 को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन और 22 को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, 24 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और 26 जुलाई को सभी 70 विधानसभाओं में विधायक पौधारोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। 3 साल बाद 151 प्राइवेट ट्रेनें 109 रूटों पर चलने लगेंगी। देश में प्राइवेट ट्रेन अप्रैल 2023 तक दौड़ने लगेंगी। ये 151 प्राइवेट ट्रेन 109 रूटों पर चलेंगी। अगले साल मार्च तक बिडिंग ओपन हो जाएगी और अप्रैल 2021 से काम शुरू होगा। यह जानकारी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी ने दी। उन्होंने इन आशंकाओं को भी गलत बताया कि रेलवे में गरीबी के चलने का हक छीनने की कोशिश हो रही है और किराया भी बढ़ जाएगा। यादव ने कहा कि केवल 5% ट्रेन ही प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे, वे भी जो ट्रेन चला रही हैं उनसे अलग होंगी, यानी ये एक्स्ट्रा ट्रेनें होंगी, जबकि 95% ट्रेनें रेलवे चलाएगा। इनमें यात्रियों के लिए मॉडर्न सुविधाओं तो होंगी, टिकट भी सस्ता होगा, साथ ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने से लोगों के रोजगार में अवसर भी मिलेगा। यादव ने बताया कि प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए 12 क्लस्टर बनाए गए हैं। दिल्ली क्लस्टर 1, दिल्ली क्लस्टर 2, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, हावड़ा, जयपुर, मुंबई क्लस्टर 1, मुंबई क्लस्टर 2, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद। हांगकांग की उलझी गुत्थी। हांगकांग में मानवाधिकार का मसला और उलझ गया है। चीन सरकार द्वारा वहां इसी सप्ताह सख्त सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद अमेरिका ने चीन पर पाबंदियां लगाने वाला कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि ब्रिटेन ने हांगकांग वासियों को निवास और नागरिकता उपलब्ध कराने का संकेत दिया। कई और देश भी हांगकांग में स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए कानून के जरिए चीन हांगकांग की जनता से वे अधिकार छीन रहा है जो उन्हें लंबे समय से हासिल रहे। जिस समझौते के तहत 1997 में चीन को हांगकांग का हस्तांतरण किया गया था, उसका भी तकाजा है कि 2046 के अंत तक हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत के अनुरूप स्वायत्तता हासिल रहे। आरोप यह है कि हांगकांग में नागरिक अधिकारों को कुचलने वाले कानून लाकर चीन अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है। मगर गौर करने वाली बात है कि इस मसले का दुनिया में चीन को अच्छा खासा समर्थन मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में क्यूबा ने चीन के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर उसे 52 देशों का साथ मिला।